Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. So currently we are discussing about the topic or the chapter. The name of this chapter is Political Theories and Introductions. Under this chapter, we'll discuss about the introduction of the political theory, and in the next few of the chapters, we will discuss about the separate chapters of a specific theories that is exist in a politics. Okay, so here we are going to discuss the point by point explanation of this particular chapter. It is a combination or the summarization of the whole chapters. See, political theory has been made one of the subfield with the rise of the political science as a subject. देखिए अब if we discuss about the political subjects, तो what exactly we learn in a political subject? हम लोग क्या सीखते हैं political subject में? We learn governing powers, election system, and many others thing in a political subject. But this is one of the subset of this particular subject, because without understanding the basic concept of politics, you cannot understand the others thing of this too. So it is very much important to learn the political theories, because if you are not knowing what exactly the means of politics, and you are not knowing that which kinds of the theory is being accepted in the political theories, so it will be worthless to learn the political science. Okay, see the second points. Political science is a study, political theory is the study. Exactly what the means of political theory we are going to discuss. It is a study of states from the philosopher and एम्पिरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी आप किसी भी स्टेट्स की स्टडी करेंगे या गवर्निंग बॉडीज़ की स्टडी करेंगे एज़ पर द फिलोसफर हैज़ सजेस्टेड द वेज, यानी फिलोसफर्स ने जो तरीके सजेस्ट किए हैं या जो रास्ते बताए हैं कि इस टाइप से हम इनको सजेस्ट करा है, या उनने जो रास्ते और जो बेसिकली वेज बताए हैं उस बेस को पॉलिटिकल थ्योरीज़ में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, कि फिलोसफर्स ने ये डिसाइड किया कि हम इस टाइप से डील करें, इस टाइप से नहीं करें. तो दिस ऑल थिंग्स और ऑल काइंड्स ऑफ द फिलोसफी इज एग्जिस्ट इन द पॉलिटिकल थ्योरी, और यू कैन से इट जस्ट नोट्स ऑफ द फिलोसफी दैट इज बीइंग यूज्ड इन पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, नेक्स्ट है political theory manages and understand between the person and state and sort out the way to improve the shortcomings. ठीक है, अब देखिए sometime it happens that we general people cannot understand what the government is doing and what decision the government is taking. Is this decision is beneficial for him or not? Because each and every person have their own aspiration, and it is practically not possible in a democratic country that the government is going to take any of the decision which provides the benefits to each and every person. So what exactly the government do? Government will find out the way so that it can take a decision as per the aspiration of the maximum number of the people, not one people. So if we understand or we learn the political theory, so we will be capable enough to understand the dealing which is important, to understand the rules or the understanding between the persons and the states here is a government, यानी एक इंसान यानी हमारी और गवर्नमेंट के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ज़्यादा बॉन्ड अप करता है. बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट क्या होती है, तो हम क्या करेंगे और हम कैसे गवर्नमेंट के रूल्स को समझेंगे. तो गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट्स क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इन सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज. ठीक है, अब पॉलिटिकल थ्योरीज कैन रेफर्स टू एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स. हाँ, वही क्वेश्चन आ गया. इट्स इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स. कुछ थॉट्स जो फिलोसफर्स के माइंड से रेफर्स हुए हैं, या साइंस के बाद जो कुछ फैक्ट ऑफ फाइल्स, या आर्ट्स के बाद जो फैक्ट ऑफ फाइल्स डिसाइडेड हुए हैं, जो थॉट्स डिसाइडेड हुए हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, दीज आर पॉलिटिकल थ्योरीज पार्ट्स. स्ट्रगल और पॉलिटिकल थ्योरीज उन चीज़ों को भी कंपेयर करती है, रेफर्स करती है उस स्ट्रगल के बारे में, दैट स्ट्रगल्स फॉर द पावर मेंटेनिंग रिलेशन बिटवीन द पावर ऑफ अथॉरिटी एंड विच इज़ डिज़ायरेबल ऑफ एन एक्ट ऑफ विल. देखिए, एक सिंपल सी चीज़ ये है कि व्हेन वी लर्न द कॉन्स्टिट्यूशन वी लर्न अ लॉट ऑफ डेरिवेशंस एंड डिबेट्स हैज़ बीन डन टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन. देयरफॉर दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी पर्सन फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इफ़ इट इज़ नॉट जनरली हैपनिंग्स देन व्हाट हैपन्स कि वी हम क्यों फॉलो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को. तो वी जस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशंस बिकॉज वी नो दैट द पर्सन हु हैज़ मेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ हायर अथॉरिटी. अब हायर अथॉरिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ बनाया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, और वो हमारे लिए किए हैं. इस वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं. तो यही चीज़ है कि अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से समझेंगे तो वी विल बिल्ड दिस टाइप ऑफ द थॉट्स इन आवर माइंड कि
व्हाट एग्जैक्टली द पावर एंड द एक्ट ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी की एग्जैक्टली पावर होती क्या है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अथॉरिटी विच डिज़ायर टू एक्ट ऑफ विल, यानी किसी भी विल को या एक्ट को करने के लिए जो पावर और अथॉरिटी उस चीज़ को क्यों लेती है, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी डील विद हाउ द प्रेजेंट हैज़ कम and on what aspirations, ठीक है, exceptions and it may stay in the future and what it lead will। ठीक है, और पॉलिटिकल थ्योरीज अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि जो अब प्रेजेंट हुआ है वो प्रेजेंट क्यों हुआ है, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज वो प्रेजेंट है, और ऐसे कौन सी चीज़ की जाए जिससे वो प्रेजेंट फ्यूचर तक रिमेन रहे या उससे बेटर बने। नेक्स्ट है, अगर हम डिस्कस करें तो है जैसे इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री वेयर इश्यूज कंसर्निंग फ्रीडम इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो बाय द इंटरवेंशंस ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ये सब इम्प्लीमेंटेशंस और यहाँ पर जो सोल्यूशन ऑफ द इश्यूज़ है दैट वी गेट बाय द पॉलिटिकल थ्योरी ओनली। इफ़ वी स्टडीड द पॉलिटिकल थ्योरी इन अ प्रॉपर वे देन ओनली वी विल कैपेबल इनफ टू फाइंड आउट और रिजॉल्व द इश्यूज दैट जनरली अराइज इन इंडिया एज इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री। Nobody can say that India is ours. It's for everyone. इट इज़ सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर कंट्री के केसेस में क्या है कि सबको बराबर मिलेगा। तो इक्वलिटी फ्रीडम्स के बेसिस में जनरल इश्यूज़, जब पर्सनल एस्पिरेशन इन्वॉल्व होते हैं तो जनरल इश्यूज़ अराइज होंगे। अब उस जनरल इश्यूज़ के सोल्यूशन कैसे मिलेंगे, व्हेन यू हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरीज कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे रिजॉल्व करना है, देन ओनली यू कैन रिजॉल्व दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सी एज फ्रीडम हैज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी फ्रीडम को गारंटी किया, बट फ्रीडम इज डजंट मीन्स दैट यू विल मेक अ हर्डल फॉर द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन्स। तो आपको फ्रीडम मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको गारंटी किया है कि यू आर फ्री, बट इट डजंट मीन्स दैट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक है, स्टिल मैनी डिस्क्रिमिनेटरी इशूज़ आर राइज एंड एनकाउंटर्ड विद द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्टेट्स। जब आप स्टेट्स का इंटरप्रिटेशन करते हो, देखिए प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड यू फ्री बट नॉट फॉर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम तो दी है, बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यू आर फ्री टू डू व्हाट्सो एवर यू वांट। ठीक है, तो अगर हम पॉलिटिकल थ्योरीज की अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम उस फ्रीडम का सही मतलब समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीन्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, कि अगर फ्रीडम है तो वो फ्रीडम किस लेवल की है और फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आप जो चाह रहे हो वो कर रहे हो, यू आर फ्री, इट्स नॉट। ठीक है, और फ्रीडम के बावजूद भी बहुत सारे प्लेसेस पे डिस्क्रिमिनेटेड इश्यूज़ अराइज होते हैं, यानी आपके फ्रीडम को एबोलिश करने के लिए जो इश्यूज़ हैं वो अराइज होते हैं। तो अगर हमें यही नहीं पता है कि व्हाट इज़ फ्रीडम, तो हम उन इश्यूज़ को कैसे समझेंगे और उन इश्यू इंटरप्रिटेशन के टाइम पे उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो दैट्स वाई यू नीड टू लर्न द पॉलिटिकल थ्योरी in a proper order. Along with the changes or in the time and the period, the people aspiration and needs will also change. New dimension discovery as well. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समय से समय, जैसे टाइम टू टाइम ईच एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग। अर्लियर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फ्रेम्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स वाज नॉट देयर एंड द लॉट ऑफ थिंग्स विच वाज देयर एट टाइम नाउ हैज़ बीन चेंज्ड। तो आप देख सकते हो उस टाइम पर और आज के टाइम के जो बदलाव हुए हैं या जो बेसिकली चेंजेस आए हैं उनमें बहुत अंतर आ गया है। उस टाइम पे कुछ चीज़ हुआ करती थी, आज वो चीज़ें नहीं हैं। उस टाइम पर कुछ न्यू नहीं था, आज कुछ नया आ गया। तो इन सारी चीज़ों को सम अप करना, इन सारी चीज़ों को समझना और नए सिचुएशन के हिसाब से डिसीज़न लेने की कैपेबिलिटी वी विल गेट व्हेन वी स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरीज डिबेट्स एंड एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग एंड ओपिनियन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड ईजीली टू बी अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरीज हमें बताती है कि हम किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट को और बेसिक चीज़ों को डिबेट्स करें, उसको एग्जामिन करें और पब्लिक ओपिनियंस डाइवर्स मीनिंग पे, जैसे एग्जामिन के बाद बहुत सारे मीनिंग निकल के आए उस चीज़ के। जैसे हमने फ्रीडम की बात की, तो फ्रीडम के केसेस में नंबर ऑफ़ पीपल्स हैज़ एक्सप्लेन द फ्रीडम इन देयर ओन वे। किसी ने कुछ कहा फ्रीडम ये है, किसी ने कहा फ्रीडम ये है, किसी ने कहा फ्रीडम ये है। तो जब सब ने फ्रीडम अपने अपने बताया तो उन सब में देखा कि एग्जैक्ट मीन्स ऑफ फ्रीडम है क्या।
उसके बाद हमने उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद हमने उस डाइवर्स मीनिंग को कंबाइन करके ओपिनियंस बनाए और उन ओपिनियंस को सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज किया और उस ओपिनियंस के बाद उनकी लैंग्वेज को कुछ ऐसा किया कि इट माइट बी और इट मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन, इट मस्ट बी रिटन इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज ओनली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर इज गेटिंग ओवर, थैंक यू वेरी मच।